Dear friends, today I am going to explain you the branch accounting, which is an important chapter in accounts for CA Inter Group 1. अब ब्रांच अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव सिंपल हमारा क्या है? टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ब्रांच. आप लोगों ने फाउंडेशन में कंसाइनमेंट अकाउंटिंग करी होगी. कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव रहता है टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑन अ कंसाइनमेंट. Similarly, branch accounting objective here to know the profit or loss of the branch. If my branch is profitable, I will continue to carry on the branch. If my branch is not making profit, I may take a decision to close down the branch. अब इस branch accounting के लिए to know the profit, various methods has been developed. For this purpose, we need to first understand we can categorize the branches in a two category: dependent branches and independent branches. Dependent branches are those branches which do not maintain any separate books of accounts. All books of accounts relating to the transaction at branch is being maintained by head office. Branch account only maintain the memorandum records, you can say a rough data, and under independent branches, branch maintain the full set of books of accounts. Under dependent branches, there are two methods to determine the profitability of the branch. First is the debtor method and second is the stock and debtor method. Today I am going to explain you the debtor method. I will explain you which type of accounts are being opened under this method and how the transactions are recorded along with certain examples. Now let's proceed. Under debtor method, HO maintain all accounting records for determining the branch profit except memorandum accounts maintained by branch. Means memorandum means these accounts do not form part of double entry bookkeeping. In this method, HO opened only a single account which is called a branch account, which forms part of double entry. The nature of the branch account is a nominal account. It shows the profit or loss of the branch. Now, what type of transactions will be recorded in this branch account? वो मैं आपको अब explain करता हूँ. Branch account record the following transaction. Opening balance of branch assets will come on the debit side of the branch account. Means if we prepare here the branch account in the books of head office, here will come BD, which is all branch asset, which could be stock, which could be debtors, which could be furniture. Similarly, if there is any branch liabilities at the opening level, it will come here as a creditor. It could be outstanding expenses, it could be the creditors. Means all branch opening assets and all branch opening liabilities will appear in a branch account. Asset will come on the debit side and the opening liabilities will come on the credit side. Similarly, the closing assets will come here, which could be stock, debtor, furniture, cash. Closing liabilities will come here, outstanding expense, creditors. Means till now what we have shown, branch account will record only the opening assets here, opening liabilities here, closing assets here, closing liability here. Now in addition to this, what branch account will record? Branch account will show only those transactions taking place between HO and branch. मीन्स इस अकाउंट में वही ट्रांजेक्शन आएंगी जो एच और ब्रांच के बीच में हो रही है. अगर कोई ट्रांजेक्शन ब्रांच और ब्रांच कस्टमर के बीच में हो रही है, वो इस अकाउंट में डायरेक्टली अपीयर नहीं होगी. Another important point, if there is a transaction between HO and branch and customer, branch creditors directly, means HO is directly selling goods to the branch customer or HO is directly making payment to the branch creditors. In this case, it will be deemed
First, the transaction is between HO and branch and then branch and the third party. तो हमें यहाँ पे इस मेथड में क्या ध्यान रखना है, डेटा मेथड में HO will open only one account, branch account, which forms part of double entry bookkeeping. Branch account will have a opening balance of assets liability, closing assets, closing liability. In addition to this, only transaction taking place between the branch and HO will come in. No other transaction will be recorded. Now to know this opening closing balances of asset liability, we maintain memorandum. Means these accounts do not form part of the double entry bookkeeping. ब्रांच डेटर्स, ब्रांच कैश, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच क्रेडिटर्स. अब इस सिर्फ इतने से क्रक्स से हाउ ब्रांच प्रॉफिट विल बी डिटरमाइन, लेट मी एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स. Prepare branch account data method. HO sends goods of 10 lakh to the branch. Now what HO will entry pass? HO will pass entry branch account debit to goods sent to branch, 10 lakh rupees. Now this 10 lakh rupees will be debited in the branch account, and this 10 lakh rupees GSTB will be set off against the purchase account in the books of the head office. Means say head office purchase 15 lakh of worth goods purchase करा, उसमें से 10 लाख रुपए उन्होंने ब्रांच को डिलीवर कर दिए गुड्स. मीन्स नाउ दे आर लेफ्ट ओनली विथ 5 लाख ऑफ गुड्स फॉर डूइंग अ ट्रेडिंग. तो परचेज अकाउंट 15 है, 10 हम यहाँ से लेस कर देंगे, परचेज अकाउंट में 5 लाख बचेगा जो आपका कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग में. तो नाउ दिस इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन दी HO एंड द ब्रांच, इट विल कम इन अ ब्रांच अकाउंट. तो हमने इसकी एंट्री ब्रांच अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर दी. ब्रांच सोल्ड ऑल गुड्स on credit for 12 lakhs. Now this is a transaction between the branch and customer. Since this is not a transaction between the branch and HO, it will not be recorded in the branch account. It will be recorded in a memorandum branch debtor as a sale. 12 लाख रुपए का हमने माल बेच दिया. आगे देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन आती है. Debtor paid 11,90,000 in full settlement to the branch. Again, this is a transaction between the branch and the customer. Again, this will not be recorded in a branch account. It will be recorded in a memorandum branch debtors and branch cash account. Debtors ने पैसा दिया, 1190 क्रेडिट कर दिया, ब्रांच के पास कैश आ गया, 10,000 रुपये डिस्काउंट हो गया, ये हमने डेटर्स में लिख दिया. Branch incurred 30,000 on expense. Now again, this is a transaction between the branch and a third party. It will not be reflected in the branch account. It will only be shown in a branch cash account expenses. Branch remit 11,50,000 to HO. Now this is a transaction between the branch and HO. It will be recorded in a cash branch account. It will be recorded as cash account debit to branch account. 11.50. HO के पास कैश आ गया, हमने यहाँ ब्रांच क्रेडिट कर दिया. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ब्रांच डेटर्स अकाउंट मेरा मैच हो रहा है, कैश अकाउंट में 1190 आए, मैंने स्पेंड कर दिए, रेमिट कर दिए 1180. 10,000 is the closing branch cash balance. It will be appearing in a branch account as a closing asset 10,000. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई प्रॉफिट की, 1,60,000. इट विल बी ट्रांसफर टू दी HO प्रॉफिट लॉस अकाउंट. अब यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करते हैं एक सिंपल टर्म्स में, क्या मेरा ये प्रॉफिट सही है. लेट्स सी. ब्रांच को कितने के गुड्स मिले, 10 lakhs के, कितने के बेच दिए, 12 lakhs के, 2 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे आ गया. 10,000 का मैंने कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया, 30,000 ब्रांच ने एक्सपेंस इंकर कर दिए, रेस्ट इज 160 का प्रॉफिट आ रहा है. तो हम लोगों ने जो ऊपर
मेथोलॉजी समझी थी। अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर मेथड इज वेरी वेरी सिंपल। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ कम्स टू दी अनदर एग्जांपल। Goods sent to branch. This is a transaction between the branch and HO. This will be recorded in a branch account. Very good. Now question says goods received by branch 950. ब्रांच के पास गुड्स कितने आए हैं? 950. What it means? It means 50,000 amount of goods is in transit. ये हम यहाँ पे ब्रांच अकाउंट के क्लोजिंग एसेट में यहाँ पे शो कर देंगे स्टॉक इन ट्रांसिट। 10 लाख का माल है, नेट इफेक्ट हम देखेंगे तो 950 का इफेक्ट आ रहा है। लेट्स सी हाउ। क्रेडिट सेल्स एट ब्रांच 15. अगेन दिस इज नॉट अ ट्रांजेक्शन बिटवीन द ब्रांच एंड HO. इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन अ ब्रांच अकाउंट, इट विल बी रिकॉर्डेड इन अ मेमोरेंडम ब्रांच डेटर। 15 लाख की सेल हमने यहाँ रिकॉर्ड कर ली। Debtors of 1 lakh paid 95,000 to HO directly in full settlement. Now ये ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रही है? HO and branch customer. Now how we will route? We will route this transaction in a way कि पहले डेटर्स ने पैसा ब्रांच को दिया, देन ब्रांच ने वो पैसा HO को रेमिट कर दिया। लेट्स सी कैसे आता है। डेटर्स ने मुझे यहाँ पे 95,000 दिए, 5,000 का डिस्काउंट, कॉरस्पॉन्डिंगली मेरा कैश बढ़ा और ये 95,000 मैंने HO को रेमिट कर दिए। नाउ ये जो ट्रांजेक्शन है, रेमिटेंस ऑफ कैश टू दी HO, इट्स अ ट्रांजेक्शन बिटवीन द ब्रांच एंड HO. इट विल बी रिकॉर्डेड इन अ ब्रांच अकाउंट। तो यहाँ पे ये एंट्री 95 की आ गई। एंट्री हमारी क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट 95,000। हमारी ये एंट्री बन गई। मैंने आपको जो बोला था, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन HO एंड द ब्रांच कस्टमर क्रेडिटर्स डायरेक्टली, हम इसको ये ट्रीट करेंगे वो ब्रांच के थ्रू ही रूट हो रही है। ब्रांच एक्सपेंस 50,000, ब्रांच ने 50,000 का खर्चा कर दिया। अगेन दिस इज अ ट्रांजेक्शन नॉट टेकिंग प्लेस बिटवीन HO एंड branch. It will not be reflected in a branch account. Branch remit 11,50,000 to the head office. ब्रांच ने 11,50,000 हेड ऑफिस को रेमिट कर दिया। ब्रांच का कैश कम हो गया। सिंस इट्स अ ट्रांजेक्शन बिटवीन द ब्रांच एंड HO, इट विल बी रिफ्लेक्टेड हेयर। यहाँ में से एक मिस्टेक हो गई, इट्स विल बी 11,50,000 रुपीज। अब नाउ वी नीड टू क्लोज दी मेमोरेंडम अकाउंट्स। हमने देखा कि यहाँ पे ब्रांच के पास 12 लाख रुपीस का कैश में इधर शॉर्ट फिगर आ रही है, तो ब्रांच के पास कैश कहाँ से आया होगा? ऑब्वियसली ये कैश कहाँ से आया होगा? मेरे पास डेटा से। तो हमने ये डेटा से कैश दिखा दिया। तो ब्रांच अकाउंट में कितनी मेरी बैलेंसिंग फिगर बच गई? डेटर अकाउंट में, सॉरी, 2 लाख रुपीस। इट्स अ क्लोजिंग एसेट ऑफ द ब्रांच। ये क्लोजिंग एसेट मेरी यहाँ पे अपीयर हो गई। अब एक बार चेक कर लेते हैं ये एरर कितना आ रहा था। एक मिनट अपन चेक कर लेते हैं। 95,000 प्लस 11,50,000 प्लस 250, इट्स अ 1495। 1495, तो यहाँ मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 495। नाउ एक बार चेक करते हैं कुछ हम गलती तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं, ब्रांच ने कुल जो सेल करी कितने की करी? 15 लाख की। और ब्रांच के पास गुड्स कितने के आए थे? 950। इसका मतलब ब्रांच के पास 5,50,000 का GP हो गया।
5,000 रुपये हमने डिस्काउंट दे दिया, 50,000 रुपये खर्चा हो गया, तो 550 में से 50 गए 4 लाख, 4 लाख में से 5,000 गए 495, वही मेरा प्रॉफिट आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे वही प्रॉफिट आ रहा है। तो सिंपल रूल जो हमने सीखा है, ब्रांच की ओपनिंग एसेट्स, ब्रांच की क्लोजिंग एसेट्स, अगर कोई लाइबिलिटी है तो क्लोजिंग, ओपनिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग, and only those transaction will come which is taking place between the branch and HO. Now, एक typical example और मैं टेकअप करता हूँ, it will give more clarity to you. Goods sent to branch 10 lakhs. Simple, this is a again transaction between the branch and HO. It will be reflected in a branch accounts. Goods purchased by the branch on credit, 2 लाख रुपए ब्रांच ने माल परचेज करा. Now this is a transaction between the branch and the creditor. Since it's not a transaction between the branch and HO, it will not be reflected in a branch account. हमने यहाँ पे एक स्टॉक अकाउंट और मेंटेन करा है, मैं आपको समझाऊंगा क्यों. अभी ये 2 लाख रुपए जो ब्रांच ने परचेज करे है वो, और जो HO से आया है वो, और क्रेडिटर्स 2 लाख क्रेडिट कर दिए. HO made payment to the creditors 190 in full settlement. This is a transaction between the HO and the branch creditors. तो हम इसे कैसे रूट करेंगे? थ्रू ब्रांच. हम मानेंगे HO ने पहले 190 की पेमेंट ब्रांच को करी है एंड ब्रांच ने क्रेडिटर्स को करी है. तो सिंस 190 की पेमेंट यहाँ हुई है, ये 190 यहाँ पे आ गए, हमने एंट्री पास कर दी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 190. ब्रांच के पास यहाँ पे 190 का कैश आ गया, उसने 190 का कैश क्रेडिटर्स को पे कर दिया और 10,000 का हमको डिस्काउंट मिल गया. क्रेडिटर्स अकाउंट मेरे क्लोज हो गए. ब्रांच सोल्ड 80% ऑफ द गुड्स ऑन क्रेडिट एट अ मार्जिन ऑफ. नाउ यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन मुझे इंडिकेशन दे रही है कि ब्रांच ने कुछ परसेंटेज ऑफ स्टॉक बेचा है. Now point is what is the remaining stock to know. और यहाँ पे गुड्स भी रिटर्न कुछ हुए, तो उस चीज को जानने के लिए अगर क्वेश्चन ये इंडिकेशन दे रहा है, वी नीड टू प्रिपेयर स्टॉक अकाउंट. ब्रांच ने 80% ऑफ द गुड्स कितने मार्जिन पे बेचे समझते. ब्रांच के पास स्टॉक कितना है? 12 लैक्स. 12 लैक्स के गुड्स है और उन्होंने 80% गुड्स बेच दिए. इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 9,60,000. तो ब्रांच के पास से इतना स्टॉक आउट हो गया. सिंस दिस इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन द ब्रांच एंड कस्टमर, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड. अब ब्रांच ने ये गुड्स कितने मार्जिन पे बेचे? 25. तो 960 का अगर हम 25% मार्जिन निकालेंगे तो 960 का इफ वी एड 25%, दैट मीन्स 1/4. हम इसका 1/4 करेंगे, इट विल कम्स टू 12 लैक्स. इसका मीन्स मेरी जो क्रेडिट सेल हो गई वो कितने की हो गई? यहाँ पे 12 लैक्स की मैंने ब्रांच डेटर 12 लाख कर दी. अगेन ये ट्रांजेक्शन भी ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगी. लेट्स सी आगे देखते हैं. डेटर्स ऑफ 2 लाख रिटर्न गुड्स डायरेक्टली टू दी HO. इट्स अ क्रिटिकल पॉइंट, ये मैं आपको समझाता हूँ. यहाँ पे भी हम यहाँ क्या ट्रीट करेंगे कि गुड्स पहले ब्रांच के पास आए हैं और ब्रांच ने ये गुड्स HO को डिलीवर कर दिए. अब यहाँ पे जो मेरा मार्जिन है, ये मार्जिन 25% ऑफ कॉस्ट है, विच मीन्स इट्स अ 20% ऑन सेल्स. ये आप लोगों ने तो पढ़ रखा होगा, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. डेटर्स ने 2 लाख का माल HO को डायरेक्टली दे दिया. अब हमने कैसे दिखाया? सेल रिटर्न 2 लाख की हो गई. ब्रांच के पास जो स्टॉक आया सेल रिटर्न से कॉस्ट पे कितना आया? 160. क्यों? हमारा मार्जिन कितना है? 20% ऑन सेल्स. तो 2 लाख का 20% कितना हो गया? इट कम्स टू 40,000 रुपीज. तो 40,000 माइनस करके कितना हो गया? 160. तो 160 हमने माना ब्रांच के पास स्टॉक आ गया और ब्रांच ने ये HO को डिलीवर कर दिया. ट्रांजेक्शन जो थी, कस्टमर ने डायरेक्टली ब्रांच को HO को डिलीवर किया था, बट वी रूटेड थ्रू दी
ब्रांच, हमने पहले ब्रांच डेटर्स कम करे, स्टॉक इंक्रीज करा और वो स्टॉक हमने रेमिट कर दिया एचओ को। तो यहाँ ब्रांच अकाउंट में ये आ गई एंट्री, गुड्स सेंड टू ब्रांच, एचओ ने एंट्री पास कर दी, गुड्स सेंड टू ब्रांच टू ब्रांच अकाउंट 160। ये ट्रांजेक्शन मेरी पूरी हो गई। ब्रांच रेमिट 9,50,000 टू दी एचओ, दिस अ ट्रांजेक्शन बिटवीन ब्रांच एंड एचओ। तो अगेन हम देखेंगे 950 ब्रांच के पास से कैश चला गया और ये ट्रांजेक्शन ब्रांच और एचओ में हुई है, तो हमने एंट्री पास कर दी, कैश टू एचओ ये आ गया। एचओ पेड 40,000 और ब्रांच एक्सपेंस, दिस अ ट्रांजेक्शन बिटवीन एचओ एंड ब्रांच। तो यहाँ पे हमने एंट्री कर दी 40,000 रुपये ब्रांच के खर्चे पे कर दिए। अब हम मेमोरेंडम अकाउंट क्लोज करते सारे। मेरे पास डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया 50, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये कैसे आया? एच ब्रांच अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आ रही थी, कैश कहाँ से आया? कैश हमने माना डेटर से आया तो बैलेंसिंग फिगर आ गई। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा स्टॉक हमारे पास कितना बच रहा है, हमारे पास स्टॉक कितना बच रहा है 240 का। इट्स अ क्लोजिंग एसेट विद द ब्रांच, तो ये आपके 240 यहाँ पे अपीयर हो गए। तो अगर हम इसको मैच करते हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है 170। अभी चेक करते हैं कि 170 का प्रॉफिट सही है कि नहीं है, लेट्स सी। ब्रांच ने क्या करा, ब्रांच ने 960 की जो कॉस्ट थी उसके गुड्स कितने में बेचे 12 लाख। यहाँ पे जो सेल रिटर्न है इसका भी इफेक्ट ले लेते हैं, -2 लाख रुपीज -160, कॉस्ट 160 थी, मींस 8 लाख के गुड्स ब्रांच ने कितने के बेचे 10 लाख के, तो 2 लाख का मेरा क्या हो गया जीपी हो गया। हमने क्रेडिटर्स को 190 पे करे, 10,000 मुझे डिस्काउंट मिल गया तो मुझे 210 एक लेवल पे पहुंच गया। 40,000 के एक्सपेंस हो गए, ये माइनस कर दिया, 170 का प्रॉफिट आ गया। तो 170 का प्रॉफिट ही मेरा ब्रांच अकाउंट रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसके अंदर जो मैंने आपको बताया है, सिंपल एक चीज़ बताई है। यहाँ पे एक चीज़ बोल दूँ, डेटर मेथड में कॉन्सेप्ट और आता है इनवॉइसिंग, वो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। यहाँ पे मैंने आपको डेटर मेथड में सिंपल ये बताया हाउ टू डिटरमाइन द प्रॉफिट अंडर अ डेटर मेथड। आपको कोई भी डाउट्स क्वेरी हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।